still in my pajamas, y'all. This is the second class with y'all I'm doing in my pajamas on my palang. See? Proof on my palang. Hello, How ma'am. many teachers love y'all so much that they teach you class sitting on their palang right after they wake up? Nishita's like, कोई नहीं. Hello, ma'am. Good morning. Good morning, really. It's like good early morning. देखो ठीक से सूरज भी बाहर नहीं निकला है अभी तक. All right. All right, here's what we're going to do. I'm going to ask a few questions and I'm going to see where each of you are in the understanding of the content. All right, let's see where everybody is in the understanding of the content. Nishita, you're with me today, right? You're with me, right? Okay, great. Now, I'm going to give you an example. I'm going to ask you a question. Ready, everybody? For left and right to connect, if I have the spelling and the letters of the word dog in my left hand, what should my right brain also have? Yes, Jyoti. Pictures. Dog's picture. Dog's pictures. Very good, Jyoti. What else should my right hemisphere have? Yes, Vrushali. Sentence. The sentence. Yes, Vrushali. Very good. Draw, Suvajit. What drawing, else? drawing. Vishali Drawing. Didi Drawing. already. Sorry, Suvajit. Vrushali Didi already said. Okay, thank you. Nishita. Ma'am, when we have a spelling and then right brain we have a drawing, so we can recognize it quickly. If we do not have a drawing part of right brain, so we cannot recognize. If the cat come in front of me, I will not recognize because Right. I only know the word. Right. Well done. So Jyoti is correct. We must have a picture, right? Photo अगर dog का दिखाए तो you should be able to recognize that. Then Nishita is also correct. The drawing. We should be able to draw कि कुत्ता कैसे लगता है. Vrushali is also correct. We must be able to compose a sentence, a creative sentence. Ayush? uh, pronunciation of dog come Pronunciation into of right dog. brain. Okay. Thank you. Ayush, Ajmer? Ma'am, uh, it sound also. Sound. I think that's what Ayush is saying. The sound of it. Yes. All right. Now, this is left, this is in right. This is what? Priya, what is this? Whole brain. Our brain. The size of my brain. This is the Yes. size of my brain. And how does it fit in my head? Like this. Right? These thumbs going down. Now, ये थंब से अभी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेस्ट कर रही हूँ. ये थंब से क्या क्या होता है सुवजित? Lateral connect. Yes, because it's on the top of your brain like this. Okay, what else happens from this? It goes in your brain like this, but what else happens? Yes, lateral connect. This is where your bridges form. So Vijit, you're absolutely correct. Okay, information is coming into the brain from the brain stem, the base of the brain. Okay, so where does the information come from? Yes, speak, Durgeshwari. Eyes. Eyes, then. Ma'am, ears. Yes. Nose. Priya. Nose. Nose. Through our And five senses. Ma'am, yes, our five sensory organs. That's right. Sight. So, sight, eyes. All right. Nose means smell. Ears means hearing. So, the sight, smell, hearing, taste, and touch. Okay. What I am touching will send information to the brain.
What I am seeing will send information to the brain. What I am hearing will send information to the brain. What I am smelling will send information to the brain. And what I am tasting will send information to the brain. All that information will first go to which part? Raise your hands, raise your hands. Will go to which part? Come on, come on, come on, come on. Yes, Akhilesh. Right. Ma'am, left part first. No, no, wrong, Akhilesh. Ayush. Front amygdala. Amygdala. All that information will first go to the amygdala. Amygdala क्या decide करेगा? Nishita, unmute, sweetheart. Means it is useful or it will harmful, means like that. Very good. तो amygdala एक question पूछेगा. खतरा, no खतरा. कितना खतरा? So first question amygdala पूछेगा खतरा, no खतरा. Second question amygdala पूछेगा कितना खतरा? If it is no खतरा, तुरंत information आगे जाएगा. If it is खतरा, then second question कितना खतरा? अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नो होता है, नो खतरा, खतरा, नो खतरा, नो खतरा, और इंफॉर्मेशन आगे जाएगा, कहाँ जाएगा? Frontal prefrontal. Very good, Jyoti. Frontal lobe. It will go to the frontal lobe. अगर आप frontal lobe किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो how will you describe it? It is like a, come on, come on, come on. Tube or container. No, Where all the no, information no, are stored. no. No tube, no container. It is like a, कहाँ क्या जाता है frontal lobe पे? Message. Yes, message, Picture. everything. Picture. No, no. Come on, we're doing really well. खतरा, no खतरा, no खतरा. ठीक है, no खतरा तो आगे जाता है. कहाँ जाता है? Frontal lobe. Frontal lobe का description क्या करता है frontal lobe? अजमेर भैया. It's make decision or choice. No, sweetheart. Frontal lobe does not make the decision. Frontal lobe. Priya? Prefrontal. One second, Jyoti. You can't answer like that, sweetheart. You have to use your Zoom hand. Priya, didi? Signals. No. Frontal lobe क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन के साथ क्या करता है? दुर्गेश्वरी. मे बी मैम इंफॉर्मेशन जो आती है उससे हम लोग का कुछ लाइक पास्ट रिकॉर्ड होगा, वो वहाँ रहता है, तो उससे कुछ जुड़ता है क्या, कनेक्शन? सो लाइक अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन बताओ ना. यस, यू आर करेक्ट. तो सिंपल एक्सप्लेनेशन जो हम लोग ने पहचान में सिखाया है. आयुष. Analyzing. आप भी सही हो, दुर्गेश्वरी भी सही है, लेकिन जैसे समझाया है मुझे नहीं बोला जा रहा है. सुवोजित भैया सिर पे हैंड नहीं रखते प्लीज. ज्योति दीदी. मैम यूज करेंगे ना इंफॉर्मेशन. अभी तक यूज नहीं करते हैं. फ्रंटल लोब पे पॉइंट. एनीबडी एल्स वांट्स टू Pre, ma'am, I know, but I have doubt. Frontal, I think so. प्री फ्रंटल पे हम पहुंचेंगे, लेकिन पहले लुक, इंफॉर्मेशन हैज कम इन थ्रू द सेंसेस. अमिगडाला पे गया है. पहला क्वेश्चन खतरा, नो खतरा, नो खतरा, तो उसने इंफॉर्मेशन आगे भेजा फ्रंटल लोब के तक. फ्रंटल लोब क्या करेगा? अखिलेश भैया, फ्रंटल लोब क्या करेगा? इमोशन. नो इमोशन. क्या इमोशन? नो इमोशन. अमिगडाला इमोशन. नो इमोशन. फ्रंटल लोब. आयुष भैया. ओ सब लोग It will search the content. सॉरी प्लीज. Search the content. वो search करेगा content को. Frontal lobe is like your
राइटिंग टेबल, अभी याद आया राइटिंग टेबल पर हम अवे अवे माथु पकड़ दुर्गेश्वरी, इट इज़ लाइक अ राइटिंग टेबल। हर एक चीज़ जो अमिगडला पास करता है फ्रंटल लोब तक इज़ लाइक अ पीस ऑफ पेपर ऑन योर राइटिंग टेबल। Frontal lobe organizes all the pieces of information that are sent forward. और कैसे ऑर्गेनाइज करता है डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैव क्रिएटेड द पाथवेज इन योर ब्रेन। बट अगर मेरा ब्रेन में होगा तो होगा ये पहचान का पेपर है तो इधर जाएगा, ये ऑफिस का पेपर है तो इधर जाएगा, करेक्ट। अभी पहचान के पेपरों के अंदर अगर मैंने अलग अलग बाइंडर बनाए हैं तो अलग अलग बाइंडर में डालेंगे। ये सोशल मीडिया का पहचान का सोशल मीडिया का पेपर है, ये सलाम पहचान का सलाम बॉम्बे फाउंडेशन का पेपर है। तो जैसे मैंने मेरा ब्रेन को ऑर्गेनाइज किया है वैसे फ्रंटल लोब पेपर को फाइल करेंगे और रखेंगे। तो इट गोज़ टू अमिगडला, अमिगडला आस्क क्वेश्चन नंबर 1, खतरा नो खतरा, आंसर नो खतरा, तो पेपर आगे जाता है फ्रंटल लोब तक। फ्रंटल लोब डिसाइड करता है कहाँ पे फाइल करना है। गलत जगह पे भी फाइल कर सकता है अगर आपका ब्रेन गलत तरीके से डिज़ाइन हुआ है तो, ऑलराइट। तो अगर बेस्ड ऑन आपने आपका ब्रेन कैसे ऑर्गेनाइज किया है वहाँ पे फ्रंटल लोब पेपर रखेगा। समझ में आया प्लीज़? यस, ओके। सो पेपर रखता है फ्रंटल लोब और फाइल करता है जहाँ पे भी आपने उसको टीच किया है कि वहाँ पे फाइल करना है, ठीक है। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक मैं टेबल बोल रही हूँ, आप अलमारी भी बोल सकते हो कि आप अपने अलमारी कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो। मुझे शर्ट्स इधर चाहिए, मुझे शॉर्ट्स इधर चाहिए, मुझे पलंग का सामान इधर चाहिए। कभी कभी किसी के अलमारी में देखा है सब कुछ ऐवी, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो किसी किसी ने राइटिंग टेबल भी ऐवी ही रखा है, कोई सिस्टम ही नहीं है ना। और किसी किसी के अलमारी में देखा है सब कुछ नीटली फोल्ड इस्त्री करने के बाद ऐसे ऐसे ऐसे, और सारे ब्लू कलर साथ में, सारे पिंक कलर साथ में, देखा है कभी कभी ऐसे अलमारियाँ। तो उन लोग का दिमाग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। तो जैसे आपने आपका ब्रेन को ऑर्गेनाइज किया है वैसे वैसे पेपर रखते जाएंगे। अगर ऐसा एक दिन आता है मीन्स वेयर यू आर वेरी बिजी और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बहुत सारे पेपर्स फटाफट 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 टेबल पे आ रहे हैं और तुरंत ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ में आ रहा है। जैसे कि आप कॉलेज के लेक्चर में हो और आपके कॉलेज के क्लासरूम में झगड़ा भी हुआ, टीचर ने किसी के ऊपर चिल्लाया, टेस्ट का अनाउंसमेंट भी हुआ, बाहर भी कुछ हो रहा है, बारिश भी गिर रहा है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ आ रहा है आपके अमिगडला को और इन्फॉर्मेशन पास किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और फट 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 पास किया जा रहा है। तो वो राइटिंग टेबल पे ज़्यादा पेपर्स जल्दी हो जाते हैं। और अगर आपके दिमाग में ज़्यादा हेल्पर्स नहीं है ऑर्गेनाइज करने के वो पेपर्स को, तो वो पेपर्स बिखरे ही रहेंगे जब तक आप रात को सोएंगे और वो जितने हेल्पर्स हैं वो आएंगे और पेपर्स फाइल करेंगे। समझ में आया? जब तक आप शांति से बैठेंगे, सांस लेंगे, वो बोलते हैं ना प्राणायाम या जो भी, जब तक आप शांति से बैठेंगे तो ऐसे समझो एक ऑफिस का सिचुएशन लेती हूँ, ठीक है, एक ऑफिस का सिचुएशन लेती हूँ। अभी ऑफिस में होने चाहिए 10 लोग, 10 हेल्पर्स, लेकिन ऑफिस में है सिर्फ 5 हेल्पर्स। लेकिन ऑफिस का काम कम नहीं हुआ है, ऑफिस का काम जितना था उतना ही है, ओके। तो काम कब कर, सब लोग को 10 लोग को उन लोग का जॉब है, ये आपका जॉब, ये आपका जॉब, ये आपका जॉब, ये आपका जॉब। अभी 5 लोग कम है
तो दिन में ये 5 लोग उनके काम करेंगे, करेक्ट? रात तक उन लोग का काम ख़त्म होता है, तो रात में ये 5 बैठ के ये 5 का काम कर सकते हैं। जब शांति है, जब दूसरे फ़ोन नहीं बज रहे हैं, जब लोग नहीं आ रहे ऑफिस में, तब बैठ के शांति से ये काम कर सकते हैं। समझ में आया? तो जब आप अपने दिमाग को शांत करते हो, ओके, तब वो वर्कर्स बैठ के वो, क्योंकि उन लोग को दूसरा काम नहीं करना है उस समय, तो आके आपके पेपर्स को फाइल कर सकते हैं। समझ में आया? यस नो यस नो यस नो यस नो। ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर स्टोरी। हमने कुछ देखा, अमिगडला को मिला, अमिगडला ने पहला क्वेश्चन पूछा, क्या आप खतरा हो? फिर उसने बोला नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खतरा हूँ। तो अमिगडला बोला ठीक है, आप जा सकते हो। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस करके वो फ्रंटल लोब तक पहुँचता है। फ्रंटल लोब में पेपर लेके फाइल किया जहाँ पे फाइल करना है। अभी प्री फ्रंटल लोब ज्योति मैडम करता क्या है? आपने बोला इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मैम आई थिंक वो पिक्चर वो करता है ना कि बेटा ब्रेन आपने में अभी बोला, मुझे अभी बोला प्री फ्रंटल लोब क्या करता है? कोई भी इंफॉर्मेशन यूज करने का है। हाउ टू यूज इट। सो दुर्गेश्वरी इज करेक्ट। दुर्गेश्वरी म्यूट पे है फिर भी बोल रही है चॉइस चॉइस, लेकिन अनम्यूट करके क्यों नहीं बोलेगी कौन जाने। सो यस, prefrontal cortex then makes the choice. So let's walk through our story a little more. So आपने आपका ब्रेन को ऑर्गेनाइज किया है कि क्लास में खड़े रहने से खतरा है, राइट? क्योंकि जब आप बॉर्न होते हो, अमिगडला तुरंत उसको पता नहीं है कि आपको क्या खतरा लगता है और आपको क्या खतरा नहीं लगता है, राइट? आप सीखते हो कि आप ज़्यादा ये करेंगे तो ये खतरा होगा। मैं गरम चीज़ को हाथ लगाऊं, हैवेंट यू नोन बेबीज़ कभी कभी गरम चीज़ को हाथ लगाते हैं। उन लोग को हर एक चीज़ उठाना है, मुंह में डालना है, ऐसे घुमाना है। तुरंत उन लोग को जैसे ही जन्म लेते हैं, जैसे ही चलने लगते हैं, उनको नहीं पता कि ये खतरा है, ये खतरा नहीं है। अगर वो गरम चीज़ को हाथ लगाए और फिर देखे कि स्टोव पे है, तो फिर अमिगडला को सिखाता है गरम खतरा। समझ में आया? तो जैसे आपने आपका ब्रेन को ट्रेन किया है, वैसे आपका ब्रेन डिसाइड करेगा क्या खतरा क्या नहीं खतरा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। This is a very important point. Haven't you seen there are some people who can jump from the mountain और कुछ मतलब डर फर कुछ नहीं है उन लोग में, and then there are some people who will stand and go नहीं बाबा नहीं नहीं जंप करना है नहीं, right? कहीं ना कहीं सिखाया है कि आप लोग पागल हो, नीचे तक ऐसे कूदने वाले हो। और कहीं ना कहीं उन लोग ने सीखा है तू पागल है क्या कि तू नीचे नहीं कूदेगी। It is how you have trained your brain. So now that is why two people can look at the same situation and one can go in one direction and the other will go in the other direction. Very important point, y'all. Very, very important point. So now I have seen something, I have sent it here. She has passed it, means I am she, so I'm calling amygdala she. Akhilesh is he, so he can call his amygdala he. I don't know amygdala he है या she है, मैं बस ऐवी ऐसे बोल रही हूँ. So now I've taken the information in, sent it to my amygdala. Amygdala, she is saying no khatra, comes to the frontal lobe. Frontal lobe says okay, इट हैज़ 2 डिपार्टमेंट्स, राइट? खतरा वाला डिपार्टमेंट, नो खतरा वाला डिपार्टमेंट। खतरा वाला डिपार्टमेंट में जाता है, टेबल पे देखता है अभी कहाँ फाइल करना है ये। शी वॉन्ट्स इट इन जनरल इन्फॉर्मेशन, शी वॉन्ट्स इट इन पहचान इन्फॉर्मेशन, शी वॉन्ट्स इट इन जॉब इन्फॉर्मेशन, शी
नाउ शी गोज़ टू पहचान फोल्डर. अभी मेरे ब्रेन में आओगे तो आप देखोगे पार्टिसिपेंट्स का एक फोल्डर है, लीडर्स का एक फोल्डर है. देन दे विल गो, अच्छा ये प्रिया के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, प्रिया के लिए कुछ फोल्डर है टेबल पे. हाँ है. कहाँ पे है? उस फाइल में डालेंगे. गॉट इट एवरीबडी? नाउ प्रिया की जो सीनियर है मुझे फ़ोन करती है और बोलती है, पता है लास्ट 3 क्लासेस प्रिया नहीं आई है. तो इन्फॉर्मेशन मैंने क्या सुना, ठीक है. पता है प्रिया लास्ट 3 क्लासेस से आई नहीं है. अमिगडला, ये खतरा वाला इन्फॉर्मेशन है या नॉन खतरा वाला इन्फॉर्मेशन है? तो अमिगडला बोलेगा थोड़ा खतरा वाला है, थोड़ा नॉट खतरा वाला है. सेंड इट टू द फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब प्रिया का फाइल ढूंढेगा, प्रिया का फाइल निकालेगा, राइट. और सारे रिलेटेड पेपर्स, प्रिया के अटेंडेंस, प्रिया के बिहेवियर, जो भी मैंने मेरा ब्रेन को सिखाया है मैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूज़ करूँगी, वो सारे पेपर्स मतलब ये नहीं भेजेगा कि प्रिया ने क्लास में ब्लू शर्ट पहनेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट रेलिवेंट with the decision that I have to make. But it will send information like last year also Priya missed 3-4 classes at this time. Priya has a job. Priya's mom is not well. जो भी relevant information है ये decision बनाने के लिए, वो सारे पेपर्स फाइल से निकाल के प्री फ्रंटल लोब तक पहुंचाएगा. समझ में आया? देन वो सारे पेपर्स प्री फ्रंटल लोब में, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज़ व्हाट आई लाइक टू कॉल इट, बट प्री फ्रंटल लोब में वो सारे पेपर्स मेरे आगे होंगे. जैसे कि मैं देख रही हूँ, अच्छा ये ऐसा ही, और उस हिसाब से ब्रेन डिसीजन लेगा. समझ में आया? कभी कभी प्रिया के बारे में डिसीजन लेने के लिए मुझे और एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ सकती है. जैसे कि प्रिटेंड Priya knows Sejal very well and I need to ask Sejal a question. तो मेरा फ्रंटल लोब को पता है कि मुझे कौन से फाइल्स की ज़रूरत होगी और कौन से पेपर्स हर एक फाइल से ज़रूरी होगा. तो सारे पेपर्स लेके मेरे प्री फ्रंटल लोब तक पहुंचाता है. तो अगर मैं ऑफिस की बात करती हूँ, ऑफिस का एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं हूँ कंपनी की डायरेक्टर. ओके, मैं हूँ कंपनी की डायरेक्टर. कुछ प्रॉब्लम हुआ है मेरा कंपनी में, तो मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अकाउंटिंग हेड पेपर लेके आएगा मेरे लिए. मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मार्केटिंग हेड मेरे लिए पेपर लेके आएगा. मेरे एचआर डिपार्टमेंट में से कोई पेपर लेके आएगा. रिसेप्शन में से कोई पेपर लेके आएगा. समझ में आया? तो सारे जो पेपर्स ज़रूरी है मुझे निर्णय लेने के लिए, वो मेरे टेबल तक लेके आएंगे. तो वैसे ही हमारे ब्रेन में डिपार्टमेंट है, फ्रंटल कॉर्टेक्स के डिपार्टमेंट है, फ्रंटल लोब के डिपार्टमेंट है. तो वो डिपार्टमेंट से सारे पेपर लेके आएंगे. हाउ डज लेफ्ट एंड राइट कनेक्ट टू दिस? सम डिपार्टमेंट्स आर इन द राइट एंड सम डिपार्टमेंट्स आर इन द लेफ्ट. तो अगर सिर्फ मेरा लेफ्ट स्ट्रांग है तो पेपर्स फटाफट सिर्फ लेफ्ट साइड से आएंगे ना. अगर मेरा राइट स्ट्रांग नहीं है और मुझे डिसीजन लेने के लिए कोई पेपर वो डिपार्टमेंट से चाहिए, तो वो पेपर ही नहीं होगा ना निर्णय लेने के लिए. तो अगर प्रॉब्लम हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो मार्केटिंग पेपर मुझे हेल्प नहीं करेगा ना. मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का पेपर चाहिए, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड ऐसे 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 चलता है. तो जब तक इनकम टैक्स लोग मेरे ऑफिस में आते हैं, बात करते हैं और जाते हैं, तब तक पेपर पहुंचा ही नहीं है. मानो आप एग्जाम लिख रहे हो, आपको जो आंसर चाहिए वो वाला डिपार्टमेंट है, लेकिन आंसर आ रहे हैं वो वाले डिपार्टमेंट में से, क्योंकि ये लोग जल्दी चलते हैं. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? So that is why connection of left and right is important. अभी फ्रंटल लोब तक पहुंचा है ये इंफॉर्मेशन,
प्री फ्रंटल लोब तक पहुंचा है ये इन्फॉर्मेशन आपको डिसीजन लेने के लिए। कभी कभी आपने नहीं सुना है लोग बोलते हैं प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू मेक अ डिसीजन, आई कांट डिसाइड नाउ, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। क्योंकि इतने सारे पेपर्स हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, बिकॉज ये भी कंसिडर करना है, ये भी कंसिडर करना है, ये भी कंसिडर करना है, सारे इतने सारे पेपर्स होते हैं दैट इट टेक्स टाइम टू मेक अ डिसीजन। अभी क्लियर? ये होता है एग्जाम्पल अगर खतरा नहीं होता है तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस एक्चुअली बिफोर आई गो टू द सेकेंड पार्ट। वृशाली दीदी, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन टू मी प्रोसेस जब खतरा नहीं होता है तो। पहले हम देखते हैं, बाद में हमारे यहाँ पर अमिगडाला के पास जाता है। अमिगडाला बोलता है खतरा नहीं है, तो फ्रंटल पर वहाँ पर जाता है और वहाँ पर सारे पीडीएफ होते हैं, ये वाली पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ, और जिस मतलब जो पीडीएफ उसकी टाइप की वहाँ पर जाती है और एक मतलब चॉइस बनती है बाद में प्री फ्रंटल में। Okay, Vrushali, well explained. Let's try. Nishita, can you try explaining it to me? Little more detail than Vrushali Didi gave us. Okay, little more detail. Go ahead. So we can hear, when we see, when we feel sensitization, so then it's go to the amygdala. So amygdala think it is harmful or it is not harmful, it is useful or not useful. It is not harmful, then it goes to prefrontal lobe. So there is a lots of No papers. prefrontal, just frontal. No prefrontal, just frontal. Frontal lobe, there is a lot of paper over there, and we have to settle to the means part. So I have the college work paper about some pehchans paper or some tuitions paper. So I will get to means I will arrange whole paper when my mind is full of. So I will set the whole paper in the arranging way, so it will help me. So then it will go to my prefrontal lobe, and then it will make a decision or a choice, where means to make a choice. Then it is, means then for example we can give that baby is one example or any example so that they can understand easily. From then we can make a choice. Okay. So, Nishita, the amygdala is only making one choice. Khatra, no khatra. Once it decides khatra, then it is deciding kitna khatra. It is not deciding, amygdala is not deciding information useful hai ya useful nahi hai. That is not the amygdala's job. That you will decide with your prefrontal cortex क्या यूज़फुल है क्या यूज़फुल नहीं है। लेकिन अमिगडला ये डिसीजन बिल्कुल नहीं बना रहा है। अमिगडला सिर्फ और सिर्फ खतरा देख रहा है और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खतरा और कुछ भी नहीं। और वो भी आपने क्या अपने ब्रेन को ट्रेन किया है कि खतरा है। All right, Durgeshwari, explain to me this process. Ma'am, I have one small question. Yes. Can you give us any example about no scary things? Like, I want one example of that. Give Like, me an example of what does not scare you. You have to start thinking because you all are coaches. Give me an example of what the एक चीज देखो ना आपके आसपास that does not scare you. Ayush. So the scary thing is if your light cut off, it will scare. She wants कोई non-scary example. She wants non-scary. okay, her mother, her siblings come to her. Maybe. Okay. Akhilesh. A bus passing in front of a bus is passing through the road.
बट समटाइम्स वी कैन परसीव दैट एज खतरा, राइट? अगर बस इधर जाएगा तो क्रैश होगा, या आई मीन कभी कभी लोग ऐसे करते हैं ना. मैम रीडिंग बुक्स Yes, और let's use reading books as an example. Okay, I will walk you through that example, Durgeshwari. Priya, another example. Ma'am, dog example is means scary and non-scary also. First time we have means opinion that dog is scary, but when so every dog is not scary. If we like means if we go to some dog near to some dog and he is not doing anything, then that time it will become non-scary for us. Right. So that is your an example and Akhilesh's example are similar. So I'm going to walk through Priya and Akhilesh's example in a minute. I'm first going to walk through the book example. So Durgeshwari is trying to, रात को 8 बजे है, दुर्गेश्वरी को किताब पढ़नी है, she wants to read a book. So Durgeshwari looks at 2 books or 3 books. She's looking at the titles. I want to read a book. Does not seem like a khatra, right? Doesn't seem like any danger in picking up a book and reading a book. So the amygdala sees that she's looking at 3 books, right? What she's looking at is going here. Amygdala is saying, oh, she's looking at 3 titles of books. I have no problem with this. Pass this information to the frontal lobe. Frontal lobe says, okay, 3 titles of books. Where is her book wala folder? Let me go to the book wala folder and files the books there. Now Durgeshwari passes a signal to her brain. I want to read I want to read a book. So prefrontal cortex books के folder में जाएगा, 3 pieces of paper निकालेगा, ये है book 1, ये है book 2, ये है book 3, और prefrontal cortex को भेजेगा, prefrontal lobe को भेजेगा. यहाँ से दुर्गेश्वरी डिसाइड करेगी उसको कौन सा किताब रीड करना है. नो खतरा. और जैसे ही दुर्गेश्वरी पेपर 1 उठाएगी, मतलब डिसीजन बनाएगी मुझे ये किताब पढ़ना है, ये तीनों पेपर वापस इधर जाएंगे, वापस बुक्स के फाइल में जाएंगे और और फ्रंटल कॉर्टेक्स में रहेंगे until दुर्गेश्वरी wants to read again next time. उतना टाइम में pretend all this happened on Monday. On Tuesday, Durgeshwari goes to the market. और मार्केट में ऐसे ही एक भैया है जो किताब बेच रहा है, और दुर्गेश्वरी एक किताब की कवर देखती है और सोचती है, वाओ दैट वुड बी अ नाइस बुक टू रीड. खरीदती नहीं है. लिया, अमिगडला नो खतरा, फ्रंटल लोब ये नया वाला किताब का नेम कहाँ फाइल किया? बुक्स के साथ. जो फोल्डर बुक्स वाला है ना दुर्गेश्वरी के फ्रंटल लोब में, वहाँ पे फाइल किया. तो नाउ दुर्गेश्वरी इज सिटिंग वेला एंड दुर्गेश्वरी इज थिंकिंग मुझे एक नई बुक खरीदनी है. तो वो ऐसे ही बैठी है. सिग्नल. क्या ये सोच खतरा है? नहीं है. फ्रंटल कॉर्टेक्स उसको बुक्स चाहिए. ठीक है, राइटिंग टेबल से बुक्स वाला फोल्डर निकाल के सारे बुक्स के नाम उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में भेजते हैं. और दुर्गेश्वरी, हाँ मैंने ये कवर देखा था, सही में मुझे ये बुक खरीदनी है. तो जैसे ही दुर्गेश्वरी डिसीजन बनाती है कि मैं ये बुक खरीदूंगी, सारे ये फाइल्स वापस इधर जाते हैं उनके फाइल में और बैठ जाते हैं. और दुर्गेश्वरी अब एक नया सिग्नल भेजती है कि मैं कंप्यूटर पे ऑर्डर कर रही हूँ. खतरा? नो खतरा. नो खतरा. फ्रंटल कॉर्टेक्स. कौन सा वो नया किताब था? दिस वॉज द किताब. ओके, दिस इज द किताब. डू यू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज वर्किंग? यस यस बोलोगे, फिर मैं बोलूँगी एक्सप्लेन करने के लिए. मैम, okay, has everybody understood? So Durgeshwari, now explain the process to me. अभी doubt नहीं है ना, तो explain. So ma'am, may I explain with the example or just how the process goes? I would love it with an example. Thank you for asking me that question. Now you see what my brain did? My brain said, hey, you just heard Durgeshwari ask you a question. Khatra, no khatra, no khatra. Frontal cortex. She's asking you to make a decision.
Do I use example or no example? So which file will it pull? My coaching wala file. कोचिंग वाले फाइल में क्या लिखा है? ऑलवेज हैव चिल्ड्रन डू विथ एग्जाम्पल, डोंट मेक चिल्ड्रन डू विथ एग्जाम्पल. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन लेता है with example. Okay, now my papers go back, they get filed, they stay there for the next time I need to make a decision. So you see how this works, and this is the pattern every single time. जब आप लेक्चर में आते हो, जब आप ऐसे क्लास में बैठे हो मेरे साथ, हर एक चीज़ जो मैं बोल रही हूँ आपके कानों के अंदर जा रहा है. हर एक इशारा जो मैं कर रही हूँ आपके आईज से इंफॉर्मेशन जा रही है. खतरा नो खतरा फिल्टर के पास करके फ्रंटल लोब तक कितने पेपर्स हो चुके अब तक आपके दिमाग में? कितने सारे पेपर्स हो चुके हैं अब तक? क्योंकि दीदी उसके बाल इधर उधर करती है, कुछ बोलती है, एग्जाम्पल देती है. इतने सारे पेपर्स हो गए हैं और फिर फटाक से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ. अब तक सारे पेपर्स फाइल भी नहीं हुए हैं जहाँ पे आपको फाइल करनी है. उतने में मैं क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ. तो जो नए पेपर्स आपके टेबल पे हैं उससे फटाफट पेपर्स आगे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक पहुँचाना है, आंसर ढूंढना है और बोलना है. Now, so the other piece that is very important, Durgeshwari, Vrushali and everybody else, the other piece is very important. आपके ब्रेन में आपके हेल्पर लोग स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जो फटाफट आपका काम कर सके. आपके हेल्पर लोग अगर स्लो है, आलसू है, नहीं करना है, तो वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन फटाफट नहीं पहुंचा पाएगा. अजमेर भैया, जब हम क्लास में एक क्वेश्चन पूछते हैं जो प्रिटेंड टीचर ने कुछ नया सिखाया है और वो नया के ऊपर टीचर क्वेश्चन पूछ रही है, अगर आपके हेल्पर स्लो है और फटाफट ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन जैसे आप सुन रहे हो, तो जब टीचर क्वेश्चन पूछेगी तो फटाफट आंसर का पेपर नहीं मिलेगा ना. लेकिन अगर आपके हेल्पर्स स्ट्रॉन्ग हैं और ज़्यादा है और फटाफट जैसे जैसे टीचर बोलती जा रही है वैसे वैसे पेपर फाइल करता जा रहा है, तो जब टीचर क्वेश्चन पूछेगी तो फटाक से वो पेपर आपके सामने पेश होगा. Haven't you noticed some students in class can answer questions like this and some students in class मैम क्योंकि पेपर्स फटाफट गए नहीं हैं. ये all of this is how you have trained your brain. अब तक हम खतरे तक पहुंचे भी नहीं है. दिस इज ऑल बिगैर खतरा इंफॉर्मेशन. ऑल राइट दुर्गेश्वरी, नाउ एक्सप्लेन योर system with your example, please. Yes, ma'am. So, like one day, just I'm like listening to songs on the like reel, and I heard one song which is really beautiful, but I just ignore that. Let's move on to like just move on. So that songs like amygdala catch that information. Like firstly, I hear that, then goes in amygdala, then it is not a khatra. So my like amygdala asks that question. So it is not a khatra. Then that information goes to frontal lobe. So frontal lobe like have a many departments. So where is my song department? So there are so many songs. So one day like there are so many songs that just stay there, not like decision on anything. But after that, one day me and my friends are discussing about something songs. So just like she's also like she's also talking about that song only, and she's showing me that reels and everything. So quickly my like I hear that song and my amygdala says this is not khatra. Then frontal lobe said, oh, this is that song that in like that song like that paper comes in prefrontal lobe. Then that decide like prefrontal lobe decide that yes, this is that song, and then we talk about that. So I think yes, that's Perfect. Well done. Great example. All right, everybody has understood. Everybody has understood clearly. All right.
So now comes the complicated part. ये आसान part था. This was the easy part. Now we will talk about the difficult part. Actually, before we talk about the difficult part, Ayush Bhaiya, can you walk us through a non-khatra study or a study wala example? Something students can relate to, because our participants may not understand about song, but they will understand about studies. Can you think of a study wala example? Nishita, Ayush, Akhilesh, Priya, Jyoti. Can you all think of a study wala example? Yes, Akhilesh. Ma'am, notes. Sometimes in exams Oh. we use them. So walk me through the example. How Durgeshwari walked me through the example. Walk me through an example. So, ma'am, like before one day before exam, we got some notes from our sir. I read 2 or 3 paragraphs, then I just left out because I was in very hurry to read it. But my amygdala started to understand. Okay, I have read this. There is something. This is not like this is something that is something important sent by sir. And then after that, like my amygdala says, it is not khatra. First, it is sent it to frontal lobe. And once I opened the question bank, question paper, and here I some found relatable words from that note. So that is some. I'm not understanding the example exactly, because if he sent you the notes the night before the exam, थोड़ा तो पैनिक होगा ना कि ये न्यू इन्फॉर्मेशन एक रात पहले कैसे सारा कुछ पढ़ूंगा कैसे, लाइक डोंट यू थिंक सो? Yes, ma'am. बट नोट्स वाला एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में सिर्फ नोट्स लिख रहे हो, वैसे ही ऐवी ही लिख रहे हो जैसे टीचर बोलता जा रहा है, आप लिखते जा रहे हो, उसमें शायद अमिगडला परसीव करता है खतरा नहीं है. और सारे जो नोट्स लिख रहे हो, अगर आप फिज़िक्स के लिख रहे हो तो फिज़िक्स का साइड में जा रहा है आपके टेबल के ऊपर. अगर आप केमिस्ट्री के लिख रहे हो तो केमिस्ट्री का जा रहा है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नाउ व्हेन यू आर स्टडिंग विथ योर फ्रेंड और क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, तो फ्रंटल लोब आपको आपका केमिस्ट्री का फाइल पेश करता है और उससे आप आंसर ढूंढ सकते हो और चूज कर सकते हो. So when you said notes, this is what I thought, not the night before the exam, right? Ayush, do you have an example? And then Priya. Ayush, do you have an example? Then Priya. Yes, ma'am. So I have some related examples. Like during this lockdown or pandemic, we are working on online. Like, and the education is also online. So in my colleges, to turn on our cameras is like वो लोग compulsory आपका कैमरा बंद रहना चाहिए. अच्छा, बंद रहना चाहिए. Okay. Yes. So we can give this example to our participant. Like आप लोग के schools या ट्यूशंस में आप हमेशा कैमरा बंद करके रखते हैं, और someday कोई का गलती से कैमरा टर्न ऑन हो गया, मतलब चालू हो गया, देन टीचर्स ने बहुत डांटा उसको, वो स्टूडेंट को, कि हम लोग ने पहले इंस्ट्रक्शन में बोला है कि कैमरा नहीं ऑन करना है, और हम लोग अभी पहचान में क्या उनको बोलते हैं कि आप कैमरा ऑन करो और हमसे बात करो, इंटरेक्ट करो. देन लाइक अमिगडाला को जब हम लोग अभी क्लास में जब हम लोग वो लोग को बोलेंगे कैमरा ऑन करो, देन दिस इंफॉर्मेशन गो टू अमिगडाला, एंड उस समय क्या बोलेगा? खतरा, क्योंकि पहले टीचर ने डांटा है कि कैमरा ऑन किया तो ऐसा वो लोग ने, सर लोग ने बोला है. देन वो खतरा बोल के देन वो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगा नहीं, मे बी ऐसा कुछ. So you're right. Yes, The example yes, is ये really good. But I want a non-खतरा वाला example. आप खतरे तक कैसे पहुंच गए? आपने बोला ना खतरे वाला. नहीं, अभी तक मैंने non-खतरा बोला. I mean, what Durgeshwari, I said khatra, non-khatra. No, I heard non-khatra only. Non-khatra beta, but I'm going to use this example, Ayush, when I start talking about khatra. यही example मैं use करने वाली हूँ, because it is a बिल्कुल correct example to use in पहचान for tomorrow's class.
when y'all are giving examples, I want you to give examples like what Ayush is giving, which is relatable to them. When it is relatable to them, they will remember the information a little more. So Ayush, पॉज करो अपना आपका स्टोरी, हम आते हैं वापस आपके पास, पिक्चर अभी बाकी है आपका. प्रिया, योर एग्जाम्पल प्लीज. मैम माय एग्जांपल इज अबाउट रिलेटेड टू स्कूल्स, टीचर्स. सो अगर कोई टीचर बाहर से आया बट हमें नहीं पता है कि वो टीचर हमें सिखाने आ रहे या कुछ भी करने आ रहे, हमें नहीं पता है, और हम उन टीचर को मिले और उन्होंने हमसे बहुत अच्छी तरह से बात किया. वो सपोज वो इन्वेस्टिगेशन करने आए हमारा स्कूल का, तो उन्होंने सिर्फ हमसे बात किया बट हमें नहीं पता है कि वो टीचर है, तो अच्छी तरह से बात किया. बट आफ्टर सम टाइम और सम मंथ्स और सम डेज, अब हम वो टीचर हमारे स्कूल में हमको टीचिंग करने आ रहे हैं. अगर वो आएंगे क्लास में, अगर वो अच्छी तरह से, तो हम रिमेम्बर करेंगे कि हाँ, मीन्स इधर स्टोर होगा फ्रंटल लोब में कि हाँ, इस टीचर से हमने बात किया था वो, और वो टीचर बहुत अच्छे थे, मीन्स बहुत अच्छी तरीके से बात किया था. तो हमको वो फिर रिकॉल होगा और फिर नॉन खतरा होगा. वो फिर से हमारा सिग्नल अमेगडाला को जाएगा, फिर से फ्रंटल लोब को जाएगा, और वो टीचर का जो बॉक्स है उधर से वो टीचर का नाम फिर से हमारे सामने आ जाएगा. Yes, Priya, absolutely. But prefrontal cortex has to make a decision, okay? Information only reaches the prefrontal cortex when it has to make a decision. So in your example, if you are trying to decide ये नई टीचर अच्छी होगी या बुरी होगी, तो टीचर के फाइल से, या ये नया जो बंदा मेरे सामने खड़ा है, नई टीचर जो मेरे सामने खड़ी है, वो अच्छी इंसान है या बुरी इंसान, हमारे साथ अच्छे से बर्ताव करेगी या बुरी से बर्ताव करेगी, तो आपका टीचर का फाइल निकलेगा और आपका फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तक वो इन्फॉर्मेशन आएगा कि नहीं, अच्छी तरह से बात की थी, अच्छी तरह से हमारे साथ फ्रेंडली थी, तो अच्छी रहेगी. Prefrontal cortex is always the part of the brain that is making your choices. Now imagine prefrontal cortex इधर से इधर तक है, right? और इधर से इधर तक है. Imagine करो, तो थोड़ा लेफ्ट में भी है, थोड़ा राइट में भी है. इसलिए लेफ्ट एंड राइट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इमेजिन यहाँ से फट 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 2 पेपर आए, यहाँ से 2 पेपर आए, लेकिन सिर्फ आपका लेफ्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप सिर्फ ये 2 पेपर से डिसीजन बनाओगे, आधा देखोगे ही नहीं डिसीजन बनाने के लिए. सो इफ यू, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग एन एग्जाम एंड ओनली हाफ द इंफॉर्मेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू टू राइट योर लॉन्ग आंसर, तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेंगे. ओके, नाउ एवरीबडी हैज क्लियरली अंडरस्टूड नॉन खतरा. दुर्गेश्वरी, आप कहाँ चली गई थी 2 मिनट, नहीं पता, लेकिन अब वापस आ गई हो. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट खतरा एंड लेट्स वॉक थ्रू आयुष's एग्जाम्पल. नाउ लेट्स वॉक थ्रू खतरा. ओके, इंफॉर्मेशन आती है. आयुष, क्या इंफॉर्मेशन आया हमारे पास? आयुष भैया, आपका एग्जाम्पल क्या था? यस मैम. आपका एग्जाम्पल क्या था बेटा? खतरा वाला एग्जाम्पल? हाँ, यस. आपने अभी बोला ना, आपका खतरा वाला एग्जाम्पल बोलो ना वापस. ओके, ओ आवाज नहीं आता, सॉरी. ओ सो उसके पेपर्स फाइल हो रहे हैं. उसके पेपर्स फाइल हो रहे हैं और वो ढूंढ रहा है वो फाइल. क्या मैंने अभी बोला, क्या मैंने अभी बोला? इतने सारे पेपर्स आ गए पेपर डेस्क पे. अभी देख रहे हो रियल लाइफ में क्या होता है दिमाग के अंदर. यस. प्रिया दीदी, प्लीज हेल्प आयुष भैया. कैन आई गिव यू हिंट आयुष भैया? यस. ऑनलाइन, ऑफलाइन, कैमरा. यस यस. सो यस, मुझे याद है. But 1 second, everybody. Priya, I have a confession.
मैं भी एग्जाम्पल भूल गई थी, इसलिए मैंने आयुष से पूछा, प्लीज़ वो एग्जाम्पल वापस दो। मैं भी भूल गई थी। सो इवन आई हैव सो मेनी पेपर्स हैपनिंग राइट नाउ। मैं हर एक को देख रही हूँ, निशिता क्या कर रही है, दुर्गेश्वरी इज पेइंग अटेंशन और नॉट, वृशाली इज अंडरस्टैंडिंग और नॉट, सेजल सुन, लाइक आई हैव सो मेनी पेपर्स राइट नाउ ऑन माई टेबल, क्योंकि आप लोग के ऊपर पे अटेंशन कर रही हूँ। मेरा लेफ्ट और राइट ढूंढ रहे शब्द, हिंदी में, इंग्लिश में एग्जाम्पल्स ढूंढ रहे हैं, तो सारे इतने सारे पेपर्स आ रहे हैं। नीचे मम्मी पापा अभी उठ गए हैं तो चाय बन रही है, उसकी आवाज़ जो आ रही है, मुझे प्यास लग रही है तो पानी पी, कोई नहीं, कितने सारे पेपर्स एक साथ फटाफट मेरे टेबल पे आ रहे हैं और मैं आप लोग सबको सुन रही हूँ। आयुष का एग्जाम्पल ध्यान में रख रही हूँ, निशिता ने क्या बोला दीपाली के बारे में मेरा ध्यान में है, मुझे रचना को मैसेज करना ये आईडी के बारे में, सेजल की आवाज़ नहीं सुनी है अब तक। इतने सारे पेपर्स एक साथ मेरे टेबल पे है और मेरे ध्यान में सिर्फ था कि मुझे आयुष का एग्जाम्पल करना है। तो आयुष का क्या एग्जाम्पल था, वो पेपर लॉस्ट हो गया टेबल पे, क्योंकि फाइल ही नहीं हुआ है किधर भी। Now are you understanding how sometimes so much information can come on your table at one time, that when you need a paper आप फटाफट से ढूंढ नहीं पाते हो। Now Priya on the other hand is paying attention. Priya is paying attention to one person. क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, एग्जाम्पल्स क्या है, देन प्रिया इज पेइंग अटेंशन टू से आयुष। नाउ प्रियाज हेल्पर्स आर वर्किंग फास्टर and in a different way. So she is filing the papers. As she is listening to Ayush, she is filing the paper. As she is listening to me, she is filing the paper. And she is not distracted with maybe anything else. Or however her brain is organized, she could find the paper like this. You understand what I'm trying to say now, everybody, how your brain is processing so many pieces of information at the same time. So Priya, thank you for recalling. So this is how it will work. Ayush is absolutely correct. When you go to a class and they are saying don't turn on the camera, don't turn on the camera, don't turn on the camera, by mistake से कैमरा ऑन होता है तो टीचर चिल्लाती है, तो ये एक्सपीरियंस रिकॉर्ड होता है, राइट। और अमिगडाला में अब रिकॉर्ड है कि कैमरा ऑन करने में खतरा है, ऑलराइट, ये अब रिकॉर्ड हो चुका है। अभी पहचान में हम बोल रहे हैं कैमरा ऑन करो भैया, कैमरा ऑन करो भैया, कैमरा ऑन करो, तो अमिगडाला सुन रही है ये बात, कैमरा ऑन करो। अमिगडाला बोल रहा है खतरा 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 खतरा, राइट। पहले हमने किया नॉन खतरा एग्जाम्पल, अब कर रहे खतरा वाला एग्जाम्पल। एक बार खतरे का सिग्नल चालू हो गया तो ऐसे समझो कि यहाँ पे एक गेट ऊपर जा रहा है, ओके। तो अगर गेट कैसे होता है, ऐसे कुछ होता है ना, मतलब थोड़े होल्स होते हैं, थोड़ा सॉलिड होता है, राइट। गेट किसी ने देखा है कभी? ओके, सो नाउ इमेजिन अ गेट इज गोइंग अप, या गेट ऐसा जा रहा है, जैसे भी आपको गेट इमेजिन करो, करना है करो, गेट ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन कोई गेट बंद हो रहा है। तो जैसे गेट बंद होता है थोड़ा ही इंफॉर्मेशन जा सकता है ना, वो गेट के होल्स के थ्रू, ओनली लिटिल लिटिल इंफॉर्मेशन कैन गो थ्रू ना। नहीं समझ में आ रहा है, सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। एक मिनट, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, होल्ड ऑन प्लीज। Hold on, please. Google. All else fails, Google. Gate. This is a gate. Anybody seen a gate? This is a gate. ऐसा कुछ गेट देखा है आप लोग ने कभी भी? Okay, now imagine. Yes, ma'am. All right, great. So now imagine this is the gate. ये दिख रहा है? अभी ये गेट बंद हो रहा है क्योंकि खतरा खतरा ना, सो इट डजंट वांट टू लेट द इंफॉर्मेशन गो बिकॉज खतरा।
अभी अगर आपका गेट ऐसा है तो देखो ये होल्स कितने बड़े हैं, तो इन्फॉर्मेशन, थोड़ा इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन बाहर रहेगा। लेकिन अगर आपका गेट ऐसा है तो कम इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगा ना, क्योंकि होल्स कम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ? सो डिपेंड्स हाउ टाइट योर, अरे ये गेट देखो भैया, अगर आपका गेट ऐसा है कितना इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगा? जाएगा ही नहीं कुछ भी, या इधर साइड से जाएगा, इधर इधर इधर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो गेट आपका कितना टाइट है वो भी आपने डिटरमिन करके रखा है। आपका गेट ऐसे होगा ताकि ओके थोड़ा इन्फॉर्मेशन जा पाएगा, आपका गेट ऐसे होगा कम इन्फॉर्मेशन जा पाएगा। वो आपने तय किया है कि आपने किस किस्म का गेट बनाया है। नाउ यू सी दिस गेट, ये खुला गेट है। नाउ इमेजिन आपका अमिगडला, वो ये मस्त वाला एग्जांपल, आपका अमिगडला इधर है, जहाँ पे मेरा माउस मैं घुमा रही हूँ ना, आपका अमिगडला इधर है। आपका फ्रंटल लोब इधर है जहाँ पे गाड़ी है। अगर खतरा नहीं है, गेट एकदम से खुला, फ्रीडम, अंदर जाओ, नो प्रॉब्लम। अगर खतरा है तो ये गेट बंद। तो जितने होल्स हैं ना इधर ऊपर, उतने से ही इंफॉर्मेशन अंदर जा पाएगा। अभी समझ में आया या नहीं समझ में आया? अभी समझ में आया। So now the information goes in, little information goes in, all the information doesn't go in. So frontal cortex को frontal lobe पे कम information आया है। तो ऐसे समझो पूरा एक पेपर नहीं आया है, टेर करके पेपर आया है। तो फ्रंटल लोब फाइल क्या करे, कहाँ करेगा? इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं है तो उसको पता नहीं है कि मैं कहाँ रखूँ, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ ये पेपर। और अगर आपका गेट बहुत टाइट है तो ऐसे समझो पेपर 5-6 हिस्से में आए हैं, तो वो कौन सा फोल्डर में कौन सा हिस्सा रखेगा? समझ में आया? तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज फ्रंटल कॉर्टेक्स हैज़ टॉर्न पीसेस ऑफ पेपर। भैया ये थोड़ा समझ में आया तो ये फाइल में रखा, ये थोड़ा समझ में नहीं आया तो वो फाइल में रखा, और ये सब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो साथ में एक दूसरे फाइल में रखूँगी, या एक टब में रखूँगी, या बकेट में रखूँगी। जब उसको पता चलेगा कि ये पेपर क्या है तब वो कहीं रखेगा। समझ में आया या नहीं समझ में आया? Why are you all looking at me like I am speaking in a way that is boring you all? No? Okay. So, this is what happens when you perceive khatra wala information. Your paper gets torn into half or lots of pieces, and then the frontal lobe does not know where to file it, and therefore एक कचरे का पाइल बन जाता है फ्रंटल लोब में। ओके, फ्रंटल लोब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई भी पेपर फेंक नहीं देता है। हर एक चीज़, it does not throw away anything, दुर्गेश्वरी। It will keep everything। जैसे कि कोई दादी नानी हर एक चीज़ रखती है ना अलमारी में, कभी फेंक नहीं देती है किसी चीज़ को, शी डजंट थ्रो एनीथिंग अवे। फिर बोलती है अलमारी में जगह ही नहीं, अरे कुछ फेंक दोगे तो ही अलमारी में जगह होगा ना। अगर आप किसी चीज़ को निकालोगे नहीं अलमारी से तो नई चीज़ कैसे डालते जाओगे? तो हमारा फ्रंटल लोब उसकी मर्ज़ी से ऐसे चीज़ों को ऐसे ही नहीं निकाल देते, आपकी परमिशन के साथ ही फिर बोलेगा अच्छा ये कचरा है, ये निकाल दो, ये मुझे रखना है, ये पेपर थोड़े टेर होके आए हैं, पानी गिरा के आए हैं, आंसू के स्टेन्स होके आए हैं, फिर भी मुझे रखना है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ओके,
सो नाउ लेट आयुष's एग्जाम्पल. दीदी बोल रही है कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो. टीचर्स ने बोले हैं प्रीवियस क्लासेस में खतरा है, प्लीज़ कैमरा ऑन मत करो. अभी खतरा 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 करके लेकिन वो क्लासेस में आते हैं बच्चे, गेट उनके ऊपर गए हैं, थोड़ा ही इन्फॉर्मेशन अंदर आ रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है. तो वो लोग डिसीजन कैसे करेंगे कैमरा ऑन करने के लिए? पूरा इन्फॉर्मेशन आया ही नहीं है फ्रंटल लोब तक. तो जब तक मैं एक सेम वाला एक्सपीरियंस को नई वाली इमोशन अटैच नहीं करूँगी, तब तक गेट ऊपर जाता ही रहेगा. Yesterday I had taught you all now, same experience plus new emotion. So that is why we have to keep creating circumstances. So this is why we make breakout rooms, smaller rooms में कम खतरा. That is why we have 2-3 दीदी भैयास. तो 2-3 दीदी भैयास are talking to each other with camera on. तो उन लोग को लगेगा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ कैमरा ऑन करने के और देखने के लिए. So that is how we are creating the same experience but attaching a new emotion. When we create the same experience and we attach a new emotion to that same experience and we repeatedly attach a new emotion to that same experience, then we retrain the amygdala to say, okay, this is no longer a khatra. Same concept for confidence, same concept for courage. अनिशिता बोलती है ना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है यहाँ पहचान में, because we have given her same experiences, stand up and speak in class, get involved in new opportunities, same experiences, but we've attached a more successful emotion to it. And because we attach more successful emotion to the same experience of speaking up, confidence increases. Amygdala becomes less scared about speaking. Making sense everybody what I am saying? मैं जल्दी उठी हूँ और आप लोग थके हुए लग रहे हो, क्यों? So this is the main crux, main piece, crux, C-R-U-X. The main crux or the main piece or the main message that we want to discuss and communicate tomorrow. Now this recording also I will upload, so it's clear, the concept is there, you understand it, you can revise it, and you know how to explain amygdala, frontal lobe, prefrontal lobe, decision making, all the papers, khatra no khatra, 3 main pieces. Prefrontal lobe, little on the left, little on the right. Frontal lobe, little on the left, little on the right. Amygdala, I'm not sure left or right. But our decision-making power is a little left, little right. Our writing table on which we file all our information is little left, little right. If I can only have access to my left, I have only access to half the information. If I have only access to my right, I only have half the information. Imagine आप एक बिजनेस चला रहे हो और इमेजिन आपके पास एडवर्टाइजिंग वाला बंदा आता है कि हमें ये एडवर्टाइजिंग करना है और हर एक ऐड के लिए 500 रुपये लगेंगे और हमें 4 ऐड लगाना है, तो टोटल बनेंगे कितने पैसे? यस सेजल, 2000 रुपये, राइट. हमें 4 ऐड लगाने हैं, एक ऐड 500 रुपये के हैं, मुझे 2000 रुपये लगेंगे. तो ऐड वाला आता है मेरे सामने और ग्राफिक वाला आता है मेरे सामने, ग्राफिक लेके कि ऐड ऐसे लगेगी. लेकिन अकाउंट्स का बंदा नहीं आता है, मुझे पता नहीं है कि मेरे बैंक अकाउंट में 2000 रुपये है या नहीं है, और मैं बोलती हूँ ऐड रन करो, और फिर पेमेंट के वक्त मैं चेक लिखती हूँ 2000 रुपये के लिए, बिना जाने कि अकाउंट में 2000 रुपये है या नहीं है. और फिर बैंक वाले बंदे बोलते हैं आपके पास 2000 रुपये नहीं है, आपके पास 1000 रुपये है.
अगर मुझे पहले से पता था कि मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं सिर्फ 2 ऐड रन करती ना। वैसा कुछ हो रहा है ब्रेन में अगर लेफ्ट और राइट कनेक्ट नहीं है तो। आप डिसीजन ले रहे हो बिना पूरी पिक्चर की। आप पेपर लिख रहे हो बिना पूरा इंफॉर्मेशन। आप ग्रेजुएट हो गए हो कॉलेज से और अब जॉब में डिफ़िकल्टी आ रही है और आपके दूसरे बंदे आगे बढ़ रहे हैं जॉब में क्योंकि आपको सिर्फ आधा काम का इंफॉर्मेशन आता है या समझ में आता है। Are you now understanding why left and right connect is so important? So we have 5 main concepts to cover tomorrow. 5. Amygdala, frontal lobe, prefrontal. खतरा नो खतरा, कितना खतरा, राइटिंग टेबल विथ पेपर्स, डिसीजन। ओके, ये पहले 3 पार्ट। सेकेंड पार्ट, एग्जाम्पल ऑफ वाई लेफ्ट एंड राइट इज इम्पॉर्टेंट। थोड़ा आपका टेबल लेफ्ट में है, थोड़ा आपका टेबल राइट में है, थोड़ा आपका डिसीजन मेकिंग पावर लेफ्ट में है, थोड़ा आपका डिसीजन मेकिंग पावर राइट में है। दैट इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट। And the third concept, which is probably the most important concept, is how can you file your papers? How can you retrain your amygdala? Same experience, new emotion. These are our 3 main concepts for tomorrow. And we have 1 hour to make sure 170 children understand these 3 concepts. 1 hour, 170 children, 3 concepts. It's a lot of work. But if you don't know the concept, you can't teach the concept. Now, tomorrow, as I am teaching, I may ask questions and then I will say, Nishita Didi, what will happen to the amygdala in case this example happens? Then Nishita Didi will answer. I will say, Durgeshwari Didi, so then frontal cortex क्या करेगा? Then Durgeshwari Didi will explain frontal cortex वो example में क्या करेगा. Then I will say, Ayush भैया, तो यही example में prefrontal cortex क्या करेगा? So you will help me teach. Okay, but only those of you who have seen the full video from yesterday and this full video that I am going to post. Once you have watched both the videos, you can put it on our group, and then I will know that tomorrow I can say Priya, Sojit, Ajmer, Sejal, Vrushali. Do you understand what I'm trying to say? And we can teach together. And then in the breakout rooms, there are 3 questions you have to ask. What is the first question, Sejal? What did you learn? Ayush, what is the second question, please? How you apply this learning in your real life? How will you? Future, right? How आप will? कैसे apply करोगे? Yes. Vrushali Didi, third question. Who will you teach this concept? Very good, Vrushali. Who will you teach this to? And Nishita Didi, the homework? Make a video of a person teaching or after teaching what they learn. Very good, Nishita Didi. दुर्गेश्वरी, तू कहाँ है तेरे सोच में? तू कहाँ चली जाती है? Occasionally. Yes. Actually, I have one question. So See, I'm just I'm telling you. And look what is happening to my brain. ये पेपर डाल, दुर्गेश्वरी देख नहीं रही है तुझे, दुर्गेश्वरी देख नहीं रही है तुझे। सुवोजित का कैमरा ऑफ है, क्या उसको समझ में आ रहा है सब कुछ? सौरभ का कैमरा ऑफ है, सुमन अभी ज्वाइन हुई है। कितने सारे पेपर्स ठक 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 मेरे पेपर पर, मेरे टेबल पे आ रहे हैं। यस दुर्गेश्वरी, व्हाट इज योर डाउट? ma'am, so when we make decisions like but I didn't understand that decisions, what type of decisions, like
लाइक कभी मैंने सॉन्ग सुना तो सॉन्ग्स के अलग अलग नाम ऐसे कुछ अलग अलग नाम आए कि उसके बाद वो नाम क्लिक होगा, ऐसे कुछ मुझे मैं आई डेंट। मैं सुबह सुबह अलमारी के सामने खड़ी हूँ। मुझे येलो शर्ट पहनना है आज, मुझे ऑरेंज शर्ट पहनना है आज, मुझे ग्रीन शर्ट पहनना है आज, दैट इज़ अ डिसीजन। मुझे हुडी पहननी है या मुझे टी शर्ट पहननी है, दैट इज़ अ डिसीजन। मुझे क्लास अटेंड करना है नहीं अटेंड करना है, डिसीजन। मुझे कैमरा ऑन करना है ऑफ करना है, डिसीजन। मेरा अभी नाउ से सुवजित फॉर एग्जाम्पल, I know he's a good student. I know he's a diligent student. I know he's a dedicated student. Right? Now Suvajit has chosen to keep his camera off. उनके दिमाग में होगा नेटवर्क इशू है, सिग्नल दिस आई वॉन्ट टू स्टिल लिसन टू द क्लास, तो मैं कैमरा ऑफ रखूँगा तो मैं सुन पाऊँगा। सो ही मेड अ डिसीजन। नाउ एज अ टीचर आई हैव टू मेक अ डिसीजन। क्या मैं सुवजित को बोलूँ नहीं कुछ भी करो कैमरा ऑन करो, या क्या मैं ऐसे सोचूं कि वो गुड स्टूडेंट है, ये सुन रहा है, उसको रहने दो, उसका नेटवर्क का कोई इश्यू होगा तो वो करेगा। यू अंडरस्टैंड, दैट इज़ अ डिसीजन। सुबह मुझे 5:30 बजे उठना है ये क्लास सिखाने के लिए, दैट इज़ अ डिसीजन। मुझे पिजामा पहन के क्लास सिखाना है या मुझे कपड़े बदलने हैं क्लास सिखाने से पहले, डिसीजन। बाल बनाने हैं नहीं बनाने हैं, डिसीजन। पहचान शर्ट ढूंढना है पहनना है, डिसीजन। समझ में आया? हम एक दिन में कितने डिसीजंस करते हैं? हम एक दिन में बहुत सारे चॉइसेस बनाते हैं। तो हमारा राइटिंग टेबल पे कितने सारे पेपर्स हैं और हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बेचारा कितने सारा कुछ डिसाइड कर रहा है। बारिश हो रही है, मुझे छाता लेके जाना चाहिए, मुझे रेनकोट चाहिए, मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे घर में बैठना है, मुझे नहीं जाना है, इतने सारे चॉइसेस। मैं घर में बैठी हूँ, बाहर बारिश हो रहा है, मुझे भजिए खाने हैं, मुझे चाय पीना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे टीवी देखना है, मुझे लेटना है, मुझे पढ़ना है, मुझे म्यूजिक सुनना है, इतने सारे डिसीजंस। आयुष यस्टरडे रक्षिता दीदी का इंग्लिश क्लास है, फ्रियाज का ये क्लास है, क्ले लैब है, मेरा होमवर्क है, मेरे कॉलेज के क्लासेस है, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा स्केड्यूल कैसे ऑर्गेनाइज करूँ? डिसीजंस, राइट? उसके ऊपर नाउ यू आर हियर इन क्लास, आपका नेबर का कुछ झगड़ा हो रहा है, आपके घर में कुछ खाना बन रहा है, आपके पापा टीवी देख रहे हैं, आपके छोटे भाई बोल रहे हैं मेरे साथ खेलो मेरे साथ खेलो मेरे साथ खेलो, आपको क्लास में ध्यान देना, ये करूँ कहाँ पे ध्यान दूँ, कितने पेपर्स आ रहे हैं। अभी फ्रियाज ने क्वेश्चन पूछा, ओह फटा फिनिश, तो अमिगडाला बोल रहा है खतरा 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 खतरा, क्योंकि तू पे अटेंशन नहीं कर रही थी। तो जितना भी आपने सुना वो भी नहीं बोल पाओगे क्योंकि गेट ऊपर गया है, तो कम इंफॉर्मेशन आएगा। Are you now understanding how your brain is working? यस मैम। Yes. And this can be the same, right? मम्मी ने बोला है, मम्मी ने आपको कुछ काम दिया है करने के लिए, मम्मी ने बोला है ध्यान रखना, याद रखना, काम करना। 8 बजे शाम को मम्मी पूछती है बेटा काम किया, और फिर हम बोलेंगे सॉरी मम्मी क्या काम। मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए ये एग्जाम्पल दे सकती हूँ। हमने जानबूझ के तो नहीं भूला, लेकिन इतने सारे पेपर्स इतने सारे जल्दी आ गए तो कहीं ना कहीं उसमें बिखर गया। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीस है जो हमने बात नहीं की है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट टुमारो, बट इट इज़ इमोशंस, द रोल ऑफ इमोशंस in frontal lobe and prefrontal lobe. We have not spoken about it. अगर हम sad होते हैं, अगर हम गुस्से होते हैं, तो we have not spoken about क्या होता है, वो हम अलग टाइम पे स्पीक करेंगे। ऑलराइट, ये फंडा क्लियर है ना, एकदम से क्लियर है ना सबके दिमाग में कल के लिए? तो नाउ पूरा दिन जब भी आप कुछ भी करोगे खुद को पूछो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, इधर अमिगडाला में है
इधर फ्रंटल में है, इधर प्री फ्रंटल में है, और जाके सब लोग को घर में ये सिखाओ। जितना आप सिखाओगे उतना आप सीखोगे। ओके, सो टीच समवन एल्स। और ये साइंस एक बार आपके दिमाग में फिट हो जाए ना, तो फिर कोई भी नया फंडा मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप तुरंत यू विल बी एबल टू लर्न इट। आपको ये साइंस आप यूज़ कर सकते हो कि पढ़ाई कैसे करनी है, एग्ज़ाम पे ए ग्रेड कैसे लाना है या ओ ग्रेड कैसे लाना है, हर एक एग्ज़ाम पर। आपका स्टडी टाइम आप आधा कर सकते हो और आपके मार्क्स ऊपर कर सकते हो ये साइंस के साथ। लेकिन पहले ये साइंस समझना चाहिए आपको। All right, so we will keep talking like this, but for tomorrow you're set, and I'm going to upload this recording so you have access to this as well.